Hello, dear friends. Once again, a very warm welcome to our lectures on some concepts of English grammar. And in the last class, we discussed about English clauses. Clauses is very important part in making of a sentence. In fact, it is that part which makes a sentence. And in clauses, if something is of the most important value, that is relative clause. Dear friends, relative clause which is sometimes also known as adjective clause, और इसका रीज़न क्या होता है? Basically it functions like an adjective, that is why it is called an adjective clause. और relative clause क्यों? Because it relates, because it joins two parts of a sentence in such a way, जो clause है, subordinate clause है, it relates somehow to the noun part of the main clause. बेसिकली वैसे ज़्यादातर काम हमारे जो आते हैं वो एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, बट for the sake of proper classification, we can say relative clause are basically of two types, though there is one more variety of relative clause, but for most important or our focus should be only two types: embedded, or sometimes known as adnominal clause, which is the most common one, and sentential clause, which is you can understand by the term itself, it is related with the sentence itself. Now all students of literature and even for competitive exam, English is not just as a subject for competitive exam, a very important concept is the difference between two types of embedded adjective clause और relative clause. जो relative clause के बारे में सबसे बड़ा confusion punctuation का rule जिसमें काफ़ी important हो जाता है. These embedded clauses या relative clause are of two types, and there is a great difference of meaning when they are used. First is known as defining, and second is known as non-defining. There are some other terms used by other different books. For example, they are also known as restrictive, they are also known as identifying, while on the other hand non-defining जो है नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी बोला जाता है और नॉन आइडेंटिफाइंग भी बोला जाता है. देयर इज वेरी माइन्यूट बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. क्यों ये कहलाते हैं? वी विल डिस्कस दैट इन दिस क्लास आल्सो. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म हियर इज एंटीसीडेंट नाउन. ये एंटीसीडेंट नाउन क्या होती है? ये सारी चीजें लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स, तो काफी आसानी से हम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी. Let me write two sentences. My sister who lives in Jaipur is a doctor. Okay, and I also write my sister who lives in Jaipur is a doctor. On a quick glance, you cannot find any difference between these two sentences apart from use of these two commas. केवल क्या हुआ है इन दोनों सेंटेंस के अंदर, अगर कोई जरा सा मैंने चेंज करा है, that is using comma that separate the relative clause. But there is a great difference in the meaning, और यही हमारा बेसिकली डिफाइनिंग और नॉन डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज का अंतर है. In this sentence, my sister who lives in Jaipur is a doctor. If I use it without comma, it indicates that there may be more than one sister. There may be two or three sisters, but the one who lives in Jaipur is a doctor. So this noun, this particular noun is identified to who lives in Jaipur.
ये जो हो रहा है काम यहां पर, ये जो हु है ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को, किस तरह से कि केवल वही सिस्टर हु लिव्स इन जयपुर। ओके, तो यहां पर ये तो आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे आपका स्टार्ट होता है रिलेटिव क्लॉज। ये पूरा हुआ आपका यहां से यहां तक रिलेटिव क्लॉज। और ये नाउन, जिस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इस नाउन को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट नाउन। यहां जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने के लिए, ये लिव्स, यहां लिव क्यों नहीं आया, लिव्स क्यों आया जो सिंगुलर के साथ आता है, बिकॉज यहां इसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से ये क्या मान के चल रहे हैं, दिस इज द सब्जेक्ट दैट गवर्न्स दिस वर्ब एंड दिस वर्ब आल्सो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता तो ये वर्ब उसके अकॉर्डिंग गवर्न होती, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है तो माई सिस्टर ही इसका सब्जेक्ट है। तो ये क्योंकि सिंगुलर है तो यहां पर लिव्स है और यहां पर इज है। ठीक है, हम सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। माई सिस्टर हु लिव्स इन जयपुर इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस के अंदर यूजिंग द कॉमा मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द मीनिंग। कैसे? अब ये हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, इट इज जस्ट नॉन डिफाइनिंग। ये एक इंफॉर्मेशन है कि देयर इज ओनली वन सिंगल सिस्टर, और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है हु लिव्स इन जयपुर। कैसे? अगर हम इस पार्ट को निकाल दें, हु लिव्स इन जयपुर, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो ग्रामेटिकली ना देखते हुए आपसे पूछा जाए माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा which one. You will assume, the listener will assume there is only one sister and that sister is a doctor. तो यहां पर ये जो है ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई ये कि इस तरह से डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो एक एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से चलता है। एक उसके अंदर नाउन होनी चाहिए, वो नाउन आपके कहलाती है एंटीसीडेंट नाउन। ओके, एक नाउन होगी, उस नाउन के बाद आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करेगा रिलेटिव क्लॉज को। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये स्टार्ट करेगा रिलेटिव नाउन से, रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होगा और उसके बाद इस सेंटेंस का, यहां जिसका नाउन था, इस सेंटेंस का बचा हुआ प्रेडिकेट आ जाएगा। कई बार यह भी हो सकता है कि लास्ट वाले नाउन जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो उसके बाद रिलेटिव क्लॉज है। कहने का मतलब है दो हमारे पास क्लॉजेज होंगी, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक रिलेटिव क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। ये आपके सेंटेंस के बीच में सेट करा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज एम्बेडेड। इसको हमने क्या करा है, इस नाउन जो सब्जेक्ट में है यहां पर और प्रेडिकेट, और कई बार ये ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है, इसको सेंटेंस के बीच में फिक्स करा है नाउन के साथ। ये नाउन हमेशा एंटीसीडेंट नाउन कहलाएगा और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज होगा वो आपके रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बहुत सारी यूज में हम ले सकते हैं। फिर वापस से छोटे छोटे कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउन किस पर्टिकुलर नाउन, किस पर्टिकुलर एंटीसीडेंट के साथ आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और फिर हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और फिर हम यूज करते हैं यूज, उसका यूज कहां कहां पर हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं हु, जो सबसे कॉमन है, whom, जो अब केवल फॉर्मल राइटिंग के अंदर ही काम में आती है, which, that, whose and zero. yes, zero रिलेटिव प्रोनाउन भी अपने आप में चीज होती है। इसको अपन एक साइन से मार्क कर लेते हैं आगे यूज करने के लिए। इस तरह से देखिए, काफी आसान है समझना, कोई ज्यादा ये डिफिकल्ट बात नहीं है। जो आपका हु है वो आप चाहे डिफाइनिंग हो चाहे नॉन डिफाइनिंग हो, उसमें आप जितनी भी एनिमेट बींग्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो उनके लिए यूज कर सकते हो या हायर स्पीशीज के लिए यूज कर सकते हो। एनिमल्स हालांकि एनिमेट में आते हैं, बट देयर आर डिफरेंट व्यूज अमंग ग्रामेरियंस रिगार्डिंग दिस। कुछ ऐसा मानते हैं कि जो पेट एनिमल्स हैं उनको हम हु के साथ एड्रेस कर सकते हैं, और जो पेट एनिमल्स नहीं हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ हम विच, जो नॉन लिविंग्स के साथ आता है, उसको यूज़ करते हैं। इवन बेबीज़ के लिए भी कई बार विच का यूज़ कर लेते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सही बात यह है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। सिंपल रूल ये है कि जो पर्सन्स हैं, लिविंग बींग, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए आप हु यूज़ करो, जो नॉन लिविंग बींग्स हैं उनके लिए आप विच यूज़ करो। अगर कोई प्लांट है, अगर कोई एनिमल है, पेट एनिमल है, अगर कोई बेबी है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, उस समय उसको देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनिमेट कह सकते हैं या फिर हम लिविंग बींग्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम एक मतलब 3 फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए। एक, चॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। उस रिलेटिव प्रोनाउन की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है, एक, कि वो चीज लिविंग है नॉन लिविंग है, 2, सेंटेंस के अंदर उसकी पोजीशन, फंक्शन क्या है, वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रही है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रही है या नहीं कर रही है, और तीसरा, वो जो क्लॉज है वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। इन 3 चीज़ों से डिसाइड होता है हु कहाँ पर होगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, हु जो है एनिमेट और लिविंग बींग्स के साथ काम में आता है। ये डिफाइनिंग के भी काम में आ सकता है, नॉन डिफाइनिंग के भी काम में आ सकता है, सब्जेक्ट के भी काम में आ सकता है, और ऑब्जेक्ट के भी काम में आ सकता है। तो इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस। ये तीनों तो बॉक्स ये क्लियर करता है, बल्कि 4th भी क्लियर करता है। बस इसका एक सिंगल कंडीशन है कि ये हम यूज करते हैं लिविंग बीइंग के साथ। हुम की अपन बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, हुम आजकल ऑब्सोलीट हो गया है, इसका यूज हम कम करते हैं। सिर्फ फॉर्मल जो राइटिंग्स हैं वहां पर कहीं कहीं देखने का मिलता है। ये भी यूज तो होता है एनिमेट के साथ या फिर लिविंग बींग्स के साथ, डिफाइनिंग में भी यूज हो सकता है, नॉन डिफाइनिंग में भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ ये यूज नहीं होता, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो एक बॉक्स इसके अंदर डेफिनेटली यूज नहीं होता कि ये सब्जेक्ट के साथ कभी यूज नहीं होता। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें ये एक बॉक्स चला गया। विच जो है वो काम में आता है आपके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ओके, बाकी सारे बॉक्स वापस से यहां पर टिक होंगे। डिफाइनिंग के साथ आ सकता है, नॉन डिफाइनिंग के साथ आ सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हर कंडीशन के साथ ये आ सकता है। ओके, ये चीज क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर, नॉन लिविंग के साथ, ये तो विच है इसलिए आपको जरूरत नहीं है याद रखने की। ध्यान रखने वाली बात है हु और विच दोनों ही कॉमन है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर है। अब आते हैं दैट पर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हम ध्यान रखते हैं एक चीज़ को कि वो किस तरह से काम करता है।
दैट सबसे बड़ी बात यह है कि सब जगह ये काम में आ सकता है, लेकिन ये केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर ही काम में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखने वाली बात है कि दैट का यूज हम केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर करते हैं, बाकी ये सारे बॉक्सेस चेक करता है। इसका मतलब ये लिविंग बीइंग्स के साथ, ये नॉन लिविंग के साथ, ये सब्जेक्ट पोजीशन में, ऑब्जेक्ट पोजीशन में, हर तरह से काम में आ सकता है, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर यूज नहीं होता है। हुज की अगर अपन बात करें, हुज का यूज किया जाता है पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि ये लिविंग और नॉन लिविंग का इसमें कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में काम आ सकता है, और जिस चीज जिसका पोजीशन बताया जा रहा है वो चाहे सब्जेक्ट पोजीशन में हो, ऑब्जेक्ट पोजीशन में हो, इट डजंट मैटर। और लास्ट में आ जाता है जीरो। जो जीरो है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि दिस कैन ओनली कम विद डिफाइनिंग, केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर ही जीरो रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज कर सकते हैं। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन टर्म ऐसी है, बाकी इसका मतलब सिंपल है कि जब आप दो क्लॉजेस को, जिसमें से एक मेन क्लॉज है एक एडजेक्टिव क्लॉज है, दोनों का आप जोड़ तो देते हैं लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या कहते देते हैं उसको जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। ये केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस में यूज होता है। ये एक छोटा सा चार्ट है, कोई ज्यादा इसको अगर हम एक चार्ट फॉर्म में ध्यान रख लें तो थोड़ा इजी रहता है। बाकी हम वन बाय वन एक एक इस पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउन, उसके एग्जाम्पल, कैसे कैसे एरर्स होती है, इन सबको अगर हम देख लेंगे तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। So we are talking about relative clauses and I have told you कि किस तरह से who, that, which, हम we will talk about one by one different functions which a relative clause can perform। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट की पोजीशन को एक्वायर कर लेता है। तो देखिए जैसा उस चार्ट में हमने देखा कि who, that and which, these three can come in position of a subject। कैसे कैसे आते हैं, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, और ज़्यादा बेटर हमेशा ग्रामर हमें तभी समझ में आएगी when we try to understand with the help of examples। He is the person who asked about you। इस सेंटेंस के अंदर हम देख सकते हैं he is the person, ठीक है, ये एक नाउन है। अब इससे क्वेश्चन अराउज होता है विच पर्सन, कौन सा, और इसको डिफाइन करते हुए, पहले ही मैंने बोल दिया डिफाइन करते हुए, तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हुआ, जिसमें जो हु है ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और हु आस्क्ड अबाउट यू ये पूरा आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि पर्सन क्योंकि लिविंग बीइंग है उसके साथ हमने हु को लगाया है। यहां पर लिविंग डेफिनेट दोनों के साथ हु आ सकता है, ठीक है, और द पर्सन द यहाँ पर हमने लगाया है। देखिए ये जो कई कॉन्सेप्ट है, कुछ जनों का ऐसा मानना है जो एंटीसीडेंट नाउन होती है वो हमेशा डेफिनेट होती है। कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर क्लॉज आ गया जो डिफाइन कर रहा है विच नाउन, तो डेफिनेट भी हो जाती है। लेकिन जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखें, कई बार ये विदाउट डेफिनेशन भी हो सकती है। आई नीड अ पर्सन, ये यहाँ पर हो गया नाउन। Who can solve this problem? यहाँ पर वापस से ये आपके हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, एंड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये आपका हो गया रिलेटिव क्लॉज। इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो हु है वो कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें, आई मेट स्वामी, स्वामी इज नेम ऑफ अ पर्सन, अ सेज, कोई भी आप कह सकते हैं। हु इज इन द टाउन टू पे माई होमेज। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे ये मैंने कॉमा के अंदर इस क्लॉज को रखा है। इसका मतलब ये है आई मेट स्वामी टू पे माई होमेज, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है
ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है स्वामी के बारे में। तो ये कैसा है, ये नॉन डेफिनेट क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एक तीसरा सेंटेंस भी देखते हैं, आई नीड अ लार्ज बैग। लार्ज बैग होते ही क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, विच कैन कैरी ऑल दिस स्टफ। कैसा बैग चाहिए, विच कैन कैरी, तो ये विच जो है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया नॉन लिविंग के लिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि इनमें से हम किस किस के साथ दैट का यूज कर सकते हैं। जहां तक पहले सेंटेंस की बात है तो यहां पर क्योंकि ये डेफिनेट क्लॉज है, लिविंग के साथ है, तो हम इजीली हु के साथ, हु के अलावा दैट का भी यूज कर सकते हैं। ही इज द पर्सन दैट आस्क्ड अबाउट यू। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आई नीड अ पर्सन, वापिस से डेफिनेट क्लॉज है, लिविंग के साथ है, इसके साथ भी हम दैट का यूज कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, बिल्कुल इन दोनों सिचुएशन में सही है। आई नीड अ पर्सन दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तीसरे क्वेश्चन, तीसरे सेंटेंस के अंदर आई मेट स्वामी दैट इज इन द टाउन, इट इज नॉट अलाउड। यहां पर दैट जो है वो नहीं आ सकता क्योंकि दैट हमेशा डेफिनेट क्लॉज के साथ ही आना चाहिए। एंड द लास्ट सेंटेंस, आई नीड अ लार्ज बैग विच कैन कैरी ऑल दिस स्टफ। वंस अगेन क्योंकि ये डेफिनेट क्लॉज है और दैट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ आ सकता है, तो यहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ये बात रही दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब सब्जेक्ट सिचुएशन के अंदर होता है। अब सब्जेक्ट के अंदर है तो आप मान के चलिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने आप में सब्जेक्ट के नाउन को रिप्लेस कर रही है। यही जो इसका एंटीसीडेंट नाउन है, इस सब्जेक्ट का होने का मतलब ये है कि ये जो एंटीसीडेंट नाउन है ये इस रिलेटिव क्लॉज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। माइंड माय वर्ड्स, किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो आने वाली वर्ब है उस वर्ब का जो फॉर्म है वो डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर नाउन के ऊपर, क्योंकि इस क्लॉज के अंदर आपको नाउन नहीं मिल रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये अगर प्रेजेंट सिंपल में होता द पर्सन हु आस्क नहीं होता, यहां पर होता आस्क अबाउट यू, या ये इस टाइप से होता दे आर द पीपल हु आस्क नहीं, तब यहां पर खाली आस्क हो जाता। तो इस तरह से ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इस एंटीसीडेंट नाउन को रिप्लेस कर रही है और यहां पर इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो इस नाउन से डिसाइड होता है। तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट को लेकर। अब हम देखते हैं, बात करते हैं हम रिलेटिव क्लॉज जब एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। वंस अगेन वी हैव ऑप्शंस इवन मोर देन द सब्जेक्ट वन। हम हु का यूज करते हैं जो जनरली आजकल हम यूज करते हैं। whom अर्लियर इट यूज टू बी द स्टैंडर्ड, लेकिन फॉर्मल राइटिंग के अलावा अब इसका यूज बहुत कम हो गया है। दैट वंस अगेन इसका स्पेसिफिक यूज है, केवल हम इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के अंदर यूज हो सकते हैं। एंड जीरो विच इज वंस अगेन इज बीइंग यूज मोर एंड मोर दीज डेज, लेकिन इसके साथ भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि जीरो रिलेटिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल, they are inviting musicians I never met before। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो दो क्लॉज है, फर्स्ट वन they are inviting musicians, ओके, इसका अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है और अपना एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद I never met before, once again it is a complete clause in itself, इसका अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके द्वारा हम इन दोनों सेंटेंसेस को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। आई नेवर मेट दीज म्यूजिशियंस, तो ये जो म्यूजिशियन है ये म्यूजिशियन इस
क्लॉज के ऑब्जेक्ट का काम करता, उसके लिए हमने क्या करा है, यहां पर ये चारों यूज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉर्मल राइटिंग है या स्टैंडर्ड वे है तो हम ये कह सकते हैं दे आर इनवाइटिंग म्यूजिशियंस whom I never met before. They are inviting musicians who I never met before. They are inviting musicians that I never met before. They are inviting musicians I never met before. इस जीरो का मतलब है वी आर ज्वाइनिंग दीज टू क्लॉजेज विदाउट एनी रिलेटिव प्रोनाउन। और चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। मैं आपको ये बता देता हूं, कॉमन जो प्रैक्टिस है दीज डेज वो है यूजिंग हु और यूजिंग जीरो या विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर जो आपको बात ध्यान में रखने वाली है, जो हम सेकंड सेंटेंस से और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, देखिए आई डोंट नो द पीपल ही इज टॉकिंग अबाउट। हम समझ सकते हैं ये मेन क्लॉज है, अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट। ये आपका रिलेटिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका भी अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जगह ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल, द पीपल को रिप्लेस करता हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर भी, क्योंकि ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, आई डोंट नो द पीपल whom he is talking about, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई डोंट नो द पीपल who he is talking about. It may sound a bit strange, but it is correct. I don't know the people that he is talking about, क्योंकि that living और नॉन लिविंग दोनों के साथ आ सकता है जब तक वो डिफाइनिंग क्लॉज हो। इट इज आल्सो करेक्ट। आई डोंट नो द पीपल ही इज टॉकिंग अबाउट, सबसे कॉमन ये है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में सिर्फ जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर तो हमारे पास इस तरह का नहीं था कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख सकें, लेकिन यहां आप देख सकते हैं द पीपल इज टॉकिंग अबाउट। यहां पर हमने क्या है, ये जो वर्ब है ये किससे डिसाइड है, इस क्लॉज के सब्जेक्ट से डिसाइड है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तब रिलेटिव क्लॉज का अपना सब्जेक्ट डिसाइड करता है रिलेटिव क्लॉज की वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होगा, जबकि जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे होते हैं तो जो मेन क्लॉज की एंटीसीडेंट नाउन है उससे डिसाइड होता है कि ये वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी। एक नॉन लिविंग का देख लेते हैं। इट इज द हाउस विच दे हैव बॉट रिसेंटली। वापस से आप देख सकते हैं द हाउस और दे, ये जो हैव है ये किससे डिसाइड हुई है, इस दे से डिसाइड हुई है, द हाउस से नहीं। अगर यही सब्जेक्ट होता है यहां पर तो द हाउस के साथ यहां पर हैज लग जाता। It is the house that they have bought recently. This is also correct. ये नॉन लिविंग है, that दोनों के साथ आ सकता है। It is the house they have bought recently. इसका मतलब जीरो भी यहां पर आ सकता है। Once again the reason, ये डिफाइनिंग क्लॉज है और डिफाइनिंग क्लॉज के अंदर ऑब्जेक्ट सिचुएशन के अंदर हम जीरो रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, सब्जेक्ट में नहीं लगा सकते। उसका मेन रीजन जीरो यूज करने का यहां पर यह है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट है, ओके लेकिन जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तब हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होता है। अब ये लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, आई सॉ द वेब सीरीज विच यू रेकमेंडेड ऑन माई फोन। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं मैंने यूज करा है इन कॉमास को, और अगर हम इस विच यू रिकमेंडेड को हटा भी दें, आई सॉ द वेब सीरीज ऑन माई फोन, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। विच यू रिकमेंडेड ये एक नॉन डिफाइनिंग, ये एक नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। और जो विच यू रिकमेंडेड, ये विच जो है किसके लिए आया है, ये इस वेब सीरीज यहां पर तो ये हो गया सब्जेक्ट का। आई poured him a glass of wine which he liked to welcome him। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, यहां पर आई पोर्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाइन विच ही लाइक्ड,
ये केवल एक नॉन आइडेंटिफाइंग, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। यहां पर अगर आप सोचें कि इस सेंटेंस को हम इस तरह से कर सकें, आई पोर्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाइन, ही लाइक टू वेलकम हिम, तो ये ग्रामेटिकली ना तो यहाँ पर जीरो आ सकता है। आप आई पोर्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाइन दैट ही लाइक, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। दैट और जीरो, इन दोनों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये केवल डेफिनिट के साथ ही यूज में होते हैं। नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग के साथ ही यहाँ पर ये यूज होते हैं। नॉन डिफाइनिंग के साथ या नॉन रेस्ट्रिक्टिव्स के साथ ना तो दैट का यूज किया जाता है, ना ही विच का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब लास्ट हम बात करते हैं एक और चीज़ की, कि पोजीशन को बताना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हुज। चाहे वो बेसिकली थिंग्स का ही पोजीशन हम बात करते हैं तो उनके साथ हुज का यूज़ होता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। दिस इज़ द नॉवल हुज राइटर पास्ड अवे टुडे। देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली में हुज है वो क्या कर रहा है, द राइटर ऑफ विच, इस पूरे को ऑफ विच को रिप्लेस कर रहा है ये हुज। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो पोजीशन है वो भी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हम ना तो जीरो और ना ही दैट का यूज कर सकते हैं। वी कांट राइट दिस इज द नॉवल दैट राइटर पास्ड अवे टुडे, नाइदर वी कैन से दिस इज द नॉवल राइटर पास्ड अवे टुडे। यू कैन इवन फील while speaking the sentence that there is something wrong about it। तो ये बड़ा ही एक फिक्स रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लॉज है जिसके अंदर होता है। जहाँ तक बात रही दैट की, तो देखिए खासकर ये जो पोर्शन है कम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर दैट के यूज़ को प्रेफर किया जाता है हु या ज़ीरो की तुलना में। वो केसेस ये हैं कि अगर एंटीसीडेंट नाउन जो है उससे पहले ऑल लगा हुआ हो, या डिटरमाइनर एवरी सम एनी लगा हुआ हो, या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा हुआ हो, या ओनली वाला जैसा कोई ऐसा और कोई एडवर्ब लगा हुआ हो, तो इस केस के अंदर हम प्रेफर करते हैं दैट का यूज। ये कुछ एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। इट इज द बेस्ट बुक, ये आपके एंटीसीडेंट नाउन है, इससे पहले हमने सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा दिया तो हम क्या यूज कर रहे हैं, इट इज द बेस्ट बुक। आप चाहें तो इजीली, ये कैसा क्लॉज है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिफाइनिंग है, तो आप चाहो तो यहां पर जीरो रिलेटिव क्लॉज, इट इज द बेस्ट बुक आई फाउंड ऑन दिस टॉपिक, करेक्ट। इट इज द बेस्ट बुक विच आई फाउंड ऑन दिस टॉपिक, करेक्ट। लेकिन प्रेफर किसको किया जाता है, दैट को यूज किया जाता है। The only thing that matters is your safety। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिंग जो एंटीसीडेंट नाउन है उसके साथ हमने the only लगाया हुआ है तो हमने किसका यूज कर लिया, that का यूज कर लिया है। सिमिलरली हैव यू गॉट एनीथिंग, ये एक पूरा क्या हो गया, ये एक पूरा एक प्रोनाउन है क्योंकि एनीथिंग या एवरीथिंग या समथिंग जो है उसके बाद हम किसको यूज कर रहे हैं, दैट को यूज कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, प्लेसिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। बड़ा फनी सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन और ग्रामेटिकली जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है अगर आप रिलेटिव क्लॉज की पोजीशन का ध्यान में नहीं रखते हैं। आई एम हियर राइटिंग टू सेंटेंसेस। अ पोल दैट वाज 7 feet tall fell on a man। A pole fell on a man that was 7 feet tall। You can see दो सेंटेंसेस थोड़ा सा हेर फेर किया गया है, थोड़ा सा that was 7 feet tall। इस पर्टिकुलर रिलेटिव क्लॉज की पोजीशन एक में एम्बेडेड है
और एक के अंदर एंड के अंदर आ रही है। एम्बेडेड ये भी है, सिर्फ ये है कि ये मीनिंग जो है, अब देखिए यहां पर क्या लग रहा है, अ पोल दैट वाज 7 फीट टॉल फेल ऑन अ मैन, एक पोल जिसकी हाइट 7 फीट थी फेल ऑन अ मैन। तो ये 7 फीट टॉल किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव है तो मॉडिफाई तो करेगा, पोस्ट मॉडिफाई करता है हमेशा। किसको मॉडिफाई कर रहा है? पोल को। इट मीन्स द हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट ऑफ पोल। A pole fell on a man that was 7 feet tall. Obviously, रेफरेंस चेंज हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन। जो आदमी 7 फीट लंबा था उसके ऊपर पोल गिरा। अब इवन वी कैन एज्यूम कि हाउ एब्सर्ड बिकम्स द सिचुएशन अगर हम थोड़ा सा भी इसके अंदर चेंज करते हैं। तो बड़ा ये केयरफुल हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जब भी हम रिलेटिव क्लॉज को यूज़ करें उसकी पोजीशन, जो मेन बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, एक कि हम अगर दैट या जीरो रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करें देन वी शुड बी वेरी केयरफुल, ये केवल डिफाइनिंग के अंदर ही यूज़ हो। दूसरी बात कि जब हम इसका पोजीशन जो है वो कहाँ पर है, और तीसरी बात डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के मीनिंग में भी चेंज आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, इफ़ वी पुट कॉमास तो उससे सेंटेंस का मीनिंग भी, कॉन्टेक्स्ट सब आपको समझकर करना पड़ेगा। हमने जो ये बात करी कि हु दैट इसके साथ होता है और इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन कई बार नाउन का रेफरेंस देने के लिए रिलेटिव एडवर्ब्स का भी यूज कर लेते हैं। इन पासिंग रेफरेंस लेट मी टेल यू अबाउट दैट आल्सो। फॉर एग्जांपल, आई कांट नेवर फॉरगेट द डे when I first saw you. Now you can look, I can't never forget the day when. When is obviously a relative adverb, तो क्या हम इसे relative clause मानेंगे या फिर हम इसे एक subordinate clause, adverb clause मानेंगे? It depends। देखिए ये जो है the day, बेसिकली इस डे को डिफाइन करता हुआ है। डे है वो एक नाउन है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर हमारे पास नाउन नहीं होती तो उसका पोस्ट मॉडिफाइंग एडजेक्टिव नहीं होता, तब ये डेफिनेटली क्या हो जाता, ये एक एडवर्ब क्लॉज हो जाता। लेकिन क्योंकि व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू ये क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। और इसका एक और तरीका है, आप चाहें तो यहाँ पर व्हेन को हटा दें तो भी मीनिंग निकलेगा, आई कैंट नेवर फॉरगेट द डे आई फर्स्ट सॉ यू। इससे पता चलता है कि व्हेन का यहाँ पर वो सेंस नहीं है जो एडवर्ब में निकलता। अगर ये सेंटेंस होता आई फॉरगेट व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, यहां पर आप देखिए आई फॉरगेट, क्योंकि यहां पर ना इस वर्ब और इसके बीच में देयर इज नो नाउन, तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, इस वर्ब का एक बेसिकली सर्कमस्टेंस प्रेजेंट कर रहा है। आप यहां पर ये नहीं बोल सकते आई फॉरगेट आई फर्स्ट मेट यू, बिल्कुल सेंस ही निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पर तो ये एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है, एंड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दिस इज नॉट एन एडवर्ब क्लॉज, इट इज अ रिलेटिव क्लॉज। ये जनरली प्लेस और टाइम से रिलेटेड नाउन्स के डिफाइन करने में काम आता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर लेसन ऑन रिलेटिव क्लॉज। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, बट आई होप if you do lot and lot of practice you would be able to crack and understand this topic. Thank you dear friends.